Hello. Yeah, we can start, I think. Uh, First of all, please accept my sincere apologies for the delay in the session. So, due to some technical issue in the Zoom, we couldn't able to start on time. So, let's start now. Good evening, everyone. On behalf of WastePark Startup Association, we would like to welcome you on the first edition of the WeFlip, that is Vesta Industrial Financial Recording in Literacy Program. progress. And we thank you for making yourself available for this today's session. Introducing myself, I am Radhika Buddu, Secretary at the WastePark Startup Association. WastePark Startup Association is a non-profit organization created with a vision to create, hello, created with a vision to play a leading role in the development and strengthening of the entrepreneurial ecosystem of the country. Our main objective of the association is to increase the entrepreneurial competency to education and training to provide global networking opportunity for membership. To achieve our objectives, we have collaborated with many government organizations, associations, Chamber of Commerce, and many others. Thus, we understand that the importance of the financial literacy in our day-to-day activities, and we have collaborated with Kritam Advisory Services for financial literacy on GST refund and BVG India, Skill Academy, T4B, and Leo Economics for NAPS and NAT scheme for benefits of MSME. We also thank you, Thistic Business Consultants and Redefine Marcon Private Limited for supporting this event. So today we have speakers with us, Umesh Unnikrishnan, Director of WastePark Startup Association, CA Kapil Mahani, Partner Indirect Tax, Kritam Advisory Services, Pramod Pawar Head, Business Development, BVG Skill Academy. First of all, I'd like to invite Mr. Umesh Unnikrishnan, who is the Director of WastePark Startup Association, Thistic Business Consultants, and Medical Value Travel Council of India. He will be talking to you on the objectives of the event for WeFlip, that is WastePark Financial Advisory Program. Umesh, over to you now. And I think this is the first program that we wanted to do online, and hence we have virtually have not been doing a lot of things online. Again, as Radhika said, thank you everybody for making them yourself available today. I'm the director of WeSpark Startup Association. We created this association with an objective of trying to provide certain information, knowledge, services, and support to the industry which is required in terms of running their day-to-day business or any other opportunities to help them grow their business. So as an association, we are today partnered with more than 75 industry associations in across 15 sectors. One of the area that we were looking at is to support on the financial challenges that is faced by a MSME during their day-to-day business working. Coincidentally, we met with our couple of partners who are there today. We have Kritam Advisory as well as BVG India today, and we decided to try one session online to highlight a couple of major themes which will be very helpful to our network partners. We have a couple of associations also who have registered here and are participating. Our idea is to take this session to a physical things that we need to incorporate in a better way to benefit the members and the MSMEs and the industry partners across. So with this idea, we identified two major themes. One is GST. Almost everybody has a problem with this whole taxation challenges. To address that, we have Kapil sir with हाँ जी हाँ us. ठीक While the GST thing has been addressed, there are quite a few government schemes which are being available, but the MSMEs have not been able to take a. Sir, you are on mute. So, okay. Am I audible now? Yeah. Okay. So we have Kapil sir, who is from the Kratom Advisory Group and My GST Refund, to address the GST program and the services that they have. Very unique
proposition on unlocking the GST for the capital of working capital requirements. And then we have Mr. Pawar from BVG India to touch base on NATS and NAP scheme. There are some specific schemes which are beneficial for the MSMEs across. I hope that we will be able to touch base on this and provide some support to our members who are participating and take this forward with our associations individually to help their members also. And with this, I think we would look forward. We already got delayed by the unfortunate technical glitch. Let us take it forward and move forward. Radhika, thanks a lot. And once again, thank you everybody for being here. Thank you, Umesh. Now, our next speaker, we'd like to invite CA Kapil Mahani, partner indirect tax, Kritam Advisory Services, will give us more insights on unlocking GST fund refund opportunities and enhancing working capital. Kapil sir, is over to you. Thank you, Radhika. And thank you, Umesh ji, for inviting us and also sharing the knowledge for solving the problem of many of the association members as well as the MSME businessmen who are particularly on the side of always have some of the issues on their teething challenges, which also includes the GST challenges as well. So just to introduce in a way wherein I am Kapil Mahani and I am the indirect tax partner of Kritam Advisory and also representing my GST refund today for the purpose of solving one of the big opportunity for the businessmen wherein since everybody is facing challenge on account of GST and we are discussing today some of the solution approach wherein from the GST, what is the benefit you can attain by way of a GST refund from your GST credits which you are presently having in your books of accounts and returns, and how you can attain the refund and how my GST refund is solving a big problem for the entire community and every businessman in unlocking the GST refund opportunity, and not only giving them the knowledge of what is the amount of refund they can avail, but also then helps them in terms of getting the refund into the bank account so that they all will be utilizing their own money, which earlier they were depending on some loans or other opportunities, and now they can utilize this money for their business operations and to expand their business operations. And in this way, I'll be presenting one deck. And after my discussion, if anybody will having any question, I'll be happy to answer that aspect as well. To start, is my screen visible? Yes. Yes, sir, it is. So for any of the businessmen, आज के टाइम पे हर बिजनेसमैन में 3 कैटेगरी होती हैं. या कोई वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. जब मेरे पास इन मेंबर्स का नाम आया उसमें काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स थे, और मैन्युफैक्चरिंग तब कहलाई जाती है जब कोई आदमी किसी मटेरियल को लेके उसके ऊपर कुछ काम करके कुछ प्रोडक्ट बनाता है. और दूसरा एक बिजनेसमैन होता है जो ट्रेडिंग करता है, जो बाइंग एंड सेलिंग करता है और किसी को ट्रेड करता है नॉर्मल वे में, या वो एक्सपोर्ट करता है, या वो किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनी के ऊपर अपना सामान बेचता है और डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचता है. और तीसरा बिजनेसमैन है वो है सर्विस प्रोवाइडर. जब कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है और उन सर्विसेज को किसी इंडिया के कस्टमर को दे रहा है और उसी के साथ में किसी के बाहर के कस्टमर को भी दे रहा है, जहां से उसको पैसा रिसीव होता है फॉरेन करेंसी में, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. तो जीएसटी लॉ के अंदर कुछ ऐसे सिनेरियोज गिवन हैं जहां पर आप जो भी अपना जीएसटी क्रेडिट
आपकी बुक्स में आता है। जीएसटी क्रेडिट क्या होता है, तो 2 मिनट में मैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एवरीवन, आज जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो कोई आपने पार्ट्स खरीदा, सर्विस खरीदी, आपने किसी सीए से सर्विस ली, आपने कोई रेंट की सर्विस ली, या आपने कोई रॉ मटेरियल लिया, आपने जीएसटी पे किया। बट आपने जब अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके या ट्रेड करके आपने आगे जी आपने किसी कस्टमर को वही 100 रुपए की चीज बेची, तो आपने उससे जीएसटी कलेक्ट किया। अब जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में आता है, फिर आप जमा उतना करते हो जितना आपके पास इनपुट पड़ा होता है, और बैलेंस अमाउंट अगर आपका आपने टैक्स लायबिलिटी आउटपुट पे 100 रुपए कलेक्ट करी और आपके पास इनपुट अमाउंट 200 रुपए पड़ा हुआ है, तो आप 100 रुपए उससे नॉक ऑफ करते हो और आपको कोई भी टैक्स आपको कैश में पे नहीं करना पड़ता। सिमिलरली इसी की अगर ऑपोजिट सिचुएशन होती कि आपने अगर 200 रुपए कलेक्ट किया होता और 100 रुपए का इनपुट पड़ा होता, तो आप कैश की लायबिलिटी 100 रुपए की पे करते। बट जब आप किसी भी आउटसाइड कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हो गुड्स या सर्विसेज, तो आपके जो क्रेडिट आपकी बुक्स में होता है उसके अगेंस्ट में आपको कोई बेनिफिट आपके लिए आज के टाइम पे वो क्रेडिट आपकी बुक्स में पड़ा रहा है। अब उस सिचुएशन में क्योंकि आपके पास वो क्रेडिट पड़ा है अनयूटिलाइज्ड और आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो आपको जीएसटी रिफंड, जो जीएसटी लॉ है वो ये बोलता है कि जो भी इनपुट टैक्स आपने लोकल परचेजेस पे आपने पे किया, आपको सरकार उसका रिफंड दे देगी। और सिमिलरली ये पहला तरीका हुआ जिसमें एक्सपोर्ट का है। बट अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या किसी गवर्नमेंट को अपना सर्विसेज या गुड्स बेचते हो, तो वो प्लेटफॉर्म पे आपका 1% का जीएसटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काटती है, और आपके जीएसटी लेजर में वो आ जाता है। जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स में काम करते हैं और इनकम टैक्स में आप किसी अपने को अपने सर्विस देते हैं, कोई आपका 10% टीडीएस काटता है, तो जब साल के एंड में आप अपनी रिटर्न भरते हैं तो आपके लिए वो एडवांस टैक्स की तरह होता है। सिमिलरली ई कॉमर्स में भी अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना सामान बेचता है अमेजॉन, तो अमेजॉन जब भी उसको वापस करता है 100 रुपए के, अगर उसने सामान बेचा और 5% जीएसटी लगाया, तो उस सिचुएशन पे जब ई कॉमर्स कंपनी उसको पैसा वापस देती है तो 104 रुपए देती है, और ना कि वो 105 देती है। अब 1% का टीसीएस जीएसटी का वो काट लेती है, और वो 1% आज के टाइम में 0.5% हो गया। और यही अगर आप गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपका 2% का जीएसटी काटती है, जो आपके खुद के लेजर में दिखता है। अब जब कोई भी बिजनेसमैन जिसके पास भरपूर जीएसटी क्रेडिट है और उसका एडवांस भी जीएसटी काट रहा है गवर्नमेंट और ई कॉमर्स कंपनी, उसका भी रिफंड मिलता है जो टीसीएस एंड टीडीएस की तरह होता है। एंड हमने ये बहुत सारे बिजनेसमैन में देखा कि नॉर्मली एक्सपोर्ट के रिफंड पे किसी ने अगर दिमाग लगा लिया, टीसीएस और टीडीएस के रिफंड्स पे कहीं पे भी कोई उनको ये लगता है कि ये भी मेरा एक इनपुट टैक्स है जिसको मुझे यूटिलाइज करना है जब भी मेरी सेल होगी उसके अगेंस्ट। तो आंसर अराउंड इज कि किसी भी बिजनेसमैन का पहला एस्पेक्ट जो एक सवाल होता है, क्या मुझे एक ही तरीके में रिफंड मिल सकता है या एक से ज्यादा भी तरीके में रिफंड मिल सकता है, तो आंसर उसका है कि उसको रिफंड एक्सपोर्ट पे भी मिल सकता है, टीसीएस में भी मिल सकता है, टीडीएस में भी मिल सकता है। और यहीं पे एक तीसरी सिचुएशन है, जो सिचुएशन है इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड। इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड क्या होता है? जब कोई बिजनेसमैन अपना सामान खरीदता है हायर रेट पे और वो जब वो बेचता है तो वो लोअर रेट पे होता है। अब ऐसे समझें जैसे सोलर पावर में बनाने के लिए किसी ने बहुत सारा सामान लिया, कोई 5% पे, कोई 12% पे, कोई 18% पे, और जब उसने वो प्लांट बेचा उसके ऊपर आउटपुट रेट लगा हुआ है 5% का। तो इस सिचुएशन में सरकार ने बोला क्योंकि आपने इनपुट ज्यादा रेट पे बाय किया हुआ है जिसको फाइनल प्रोडक्ट आपका 5% का है, तो उस सिचुएशन पे हम आपको रिफंड देंगे आपके क्रेडिट का। तो क्रेडिट जो आज के टाइम पे बुक्स में सिर्फ एक ऐसा अमाउंट है जो कभी भी बिजनेसमैन ये नहीं सोचता कि इसको मैं अपने रिफंड में भी ले सकता हूं। तो
in that scenario there is a situation which is a refundable. हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इन द फॉर्म ऑफ आवर नेक्स्ट स्लाइड्स, बट उससे पहले इस सब सिचुएशन पे आज माई जीएसटी रिफंड ने जो एक प्लेटफॉर्म बना के उन्होंने क्रिएट किया है कि कोई भी बिजनेसमैन को अपना रिफंड किसी भी तरीके से समझना ना पड़े और उनको ये समझ में आ जाए कि उनके अपने जीएसटीएन में कितना रिफंड बनता है, उस सिचुएशन के लिए माई जीएसटी रिफंड ने एक सिंगल जीएसटीएन नंबर डालने से और अपना बेसिक यूजर नेम डालने से आपको आपका रिफंड अमाउंट पता लगता है कि आपके अपने जीएसटी क्रेडिट में से कितना अमाउंट आप बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। सो माई जीएसटी रिफंड का जो ये टूल है वो एकमात्र टूल है जिसमें किसी भी पहली बार किसी बिजनेसमैन को कोई भी बिना डिटेल बताए एक्सेप्ट अपना जीएसटी नंबर और जीएसटी यूजर नेम, नो पासवर्ड, जिससे डायरेक्टली आपके पास ओटीपी आएगा और आप अपना ओटीपी डालेंगे तो आपको रिफंड का अपॉर्चुनिटी पता लगता है। अब मैं एक वीडियो चला रहा हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो से ये प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट हाउ दिस all opportunities can be encashed. Hi, today I will show you how to calculate your GST refund using My GST Refund app. First, go to My GST Refund app. Click on Register Now if you are a new user or if you are an existing user. Just log in with the desired information. After logging in, the dashboard screen will be shown like this. Go to Setup option. Click on Business, select account from which you have to log in. Enter company details like name, PAN, GSTN, then click on Submit. After submitting the details, go to Refund Calculator. Fill the required details, GSTN, refund type, select the time period, then click on Calculate. Your estimated refund calculation will be shown on screen. And also, if you want to download the report of estimated refund calculation, you can do it from India's first automated GST refund platform. So, इस प्लेटफॉर्म पे हमने ये देखा कि आपको आपका जीएसटी नंबर डालना है, आपका कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके बाद आपने अपना यूजर नेम डाला और आपको उसके बाद सिर्फ आपका रिफंड कौन से टाइप का रिफंड है, आपका इन्वर्टेड ड्यूटी का है, एक्सपोर्ट का है, टीसीएस का है, और इन सब सिनेरियोज में आप अपना रिफंड अमाउंट चेक कर सकते हैं और आपको पता लगेगा, और हर एक अमाउंट आपके लिए सेपरेट है, बट कोई भी रिफंड अमाउंट विद इन आपको उसके क्रेडिट लेजर से ऊपर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट टीसीएस रिफंड। सो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशंस हैं जहां पे रिफंड आ सकता है, और अगर किसी को ये भी नहीं पता कि मेरा कौन कौन से सिनेरियो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है जहां पे रिफंड आएगा, उसके लिए भी माई जीएसटी रिफंड ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है जहां पे आप अपनी बेसिक डिटेल देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कितने सिनेरियोज आएंगे जहां पे आपको रिफंड मिल सकता है। Hi, today I will show you how to. अब इसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है बिजनेसमैन की वो ये है कि मैं कैसे अपना एलिजिबिलिटी चेक करूं कि मेरे पास कितने रिफंड टाइप्स हैं जहां पे मेरे पास हो सकता है। तो उसके लिए हमारे इस माई जीएसटी रिफंड प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपने मैं एक अगर हम माई जीएसटी रिफंड में जाएंगे, जस्ट
इज माय स्क्रीन विजिबल? तो यहाँ पे नो योर रिफंड्स का ऑप्शन है। कोई भी बिजनेसमैन को सबसे पहले अपने बारे में जानना है कि वो कौन कौन से सिनेरियो में रिफंड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है इस नो योर रिफंड्स, माई जीएसटी रिफंड पे गए, आपने नो योर रिफंड्स स्क्रीन नहीं क्लिक दिख किया। स्क्रीन नहीं दिख Your रही है। screen is not updated. We are only able to see the Google search bar. इज माय स्क्रीन विजिबल? Yeah, it is. तो आप माई जीएसटी रिफंड पे गए और आपने नो योर रिफंड्स क्लिक किया और आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आप अगर प्रोडक्ट कंपनी है तो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। आपने अगर आपका कोई सेक्टर, लेट सपोज सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो आपने टेक्सटाइल। आपने बोला मैं ट्रेडर भी हूं, मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं, आपने कहा मैं बोथ। आपसे सवाल पूछा गया कि आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सप्लाई करते हैं, आपने कहा यस। आपने कहा व्हाट इज द सेल्स, आपसे पूछा गया कि आप कितनी परसेंटेज सेल्स करते हैं, तो आपने बोला 20% करता हूं। मैं गवर्नमेंट को सप्लाई करता हूं, हाँ सर मैं गवर्नमेंट को भी सप्लाई करता हूं। 5% टोटल अपनी टोटल सेल्स का सप्लाई करता हूं। एक्सपोर्ट करते हैं सर, एक्सपोर्ट भी करता हूं। मेरा आउटपुट, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये आउटपुट रेट आपसे पूछा गया कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर आउटपुट रेट क्या, आपने कहा 5% आउटपुट रेट है। और आपका कोई इनपुट है जो 12% से अबव है, उसने कहा यस। आपने अपनी बेसिक डिटेल डाली और इस बेसिक डिटेल डालने के बाद ना बंद कर दो, अच्छे नहीं है। और आपने कैलकुलेशन करी और यहां पे आपको पता लग गया कि आपके एक्सपोर्ट में भी आपको रिफंड मिल सकता है, आपको इन्वर्टेड ड्यूटी में भी मिल सकता है, आपको टीसीएस में भी मिल सकता है और आपको टीडीएस में भी मिल सकता है। तो 4 सिनेरियोज हैं इस बिजनेसमैन के जो हमने डिस्कस किया जहां पे उसको रिफंड मिल सकता है। अब सिचुएशन इज कि मेरे पास ये आया कि मेरे को रिफंड मिल सकता है। अब मैं कौन कौन से सिनेरियोज में रिफंड ले सकता हूं और कौन कौन से सिनेरियो मेरे लिए एलिजिबल होंगे और मुझे क्या क्या दिक्कतें उसके अंदर आएंगी, वो सब हम एक बार डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे को नॉर्मली लोगों को दिक्कत आती है इस रिफंड ऑप्शंस में, वो ये है कि एलिजिबिलिटी के लिए माई जीएसटी रिफंड प्लेटफॉर्म ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जो कि ये थी कि मेरे पास में कौन कौन से सिनेरियो में मिलेगा और कहाँ कहाँ कितने अमाउंट का हर एक सिनेरियो मिलेगा, जो आज के टाइम पे बहुत सारी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी सेल्स करी। बट ये सब जो सिचुएशन थी माई जीएसटी, अब हम यहां समझते हैं कि हमारे पास में रिफंड अमाउंट आ गया। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत था कि हम जब जीएसटी रिफंड लोगों के थे, उन्होंने कहा मैं अपनी स्टेट में तो अपने किसी लोकल कंसल्टेंट से ले लेता हूं, बट पैन इंडिया मैं कैसे इन तो क्या नाम है रिफंड लेता हूं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो जीएसटी रिफंड। अब इस सिनेरियो में भी माई जीएसटी रिफंड कैसे हेल्प कर रहा है कि जहां पे दे आर हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द रिफंड इनटू अ बैंक अकाउंट by way of processing the application and also getting that processed and also with the department, and once the government grants the refund then it will automatically comes to the bank account of the particular assessee. But problems क्या हुई कि इन रिफंड्स में लोगों का ये देखा गया कि अगर वो एक स्टेट में फाइल कर रहे हैं तो भी वो मल्टीपल अलग अलग उसके रजिस्ट्रेशंस हैं और उन रजिस्ट्रेशंस में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज हैं। किसी स्टेट में रिफंड फाइल किया तो बोला गया कि यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अब वो कैलकुलेशन के लिए इन सब दिक्कतों के बेसिस पे जो जीएसटी एसएससी है वो सोचता है कि मैं साल के एंड में फाइल करूंगा, एंड दैट इज हाउ माई जीएसटी रिफंड इज हेल्पिंग कि उसका रिफंड
वो महीने के महीने फाइल करे और महीने के महीने ही आपके बैंक अकाउंट में आए, क्योंकि जीएसटी लॉ इज नॉट अलाउइंग द सिचुएशन फॉर अ इंटरेस्ट. अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन ही नहीं फाइल करी तो इन दैट सिनेरियो दे विल नॉट ग्रांट यू रिफंड एंड दे विल नॉट गिव यू द इंटरेस्ट अमाउंट इटसेल्फ. बट अब द सिनेरियोज ऑफ रिफंड पे हम बात करते हैं, विच इज अबाउट द एक्सपोर्ट. सो फॉर अ एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स देयर आर टू काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स में भी कर सकता है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में भी कर सकता है. विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स को जनरली बोला जाता है एलयूटी एक्सपोर्ट्स, और विद पेमेंट ऑफ टैक्स को में आपको कोई भी एलयूटी की जरूरत नहीं आती. अब पहला सवाल आता है कि सर जब हमारे पास विद पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाएगा तो मुझे रिफंड क्यों मिलेगा? तो जीएसटी लॉ ने एक सबसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकाली कि अगर आप गुड्स बिजनेसमैन हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने इनपुट टैक्स को यूटिलाइज करके जीएसटी पे कर सकते हैं. और जो भी आप जीएसटी पे करेंगे, कस्टम डिपार्टमेंट आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में दे देगा रिफंड, और आपकी जो जीएसटी रिटर्न्स हैं वो अपने आप में एक रिफंड एप्लीकेशन हो जाएंगी. तो उसमें किसी भी आदमी की आपको जरूरत नहीं आएगी टू प्रोसेस. बट इस सिनेरियो में जो इसमें ऑटोमेटिकली रिफंड आता है, वहां पर भी हर एक शिपिंग बिल के अगेंस्ट में मुझे पेमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा. आज के टाइम पे बिजनेसमैन को एक एक शिपिंग बिल की डिटेल जीएसटी से देखनी पड़ती थी और आइस गेट से देखनी पड़ती थी कि हर एक. इन दैट सिनेरियो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इज कि आइस गेट के ऊपर जाना, उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, या उसमें ये देखना कि मेरा इस शिपिंग बिल क्लियर हो गया है, रिफंड आ गया है, ये बहुत बड़ा हैसल प्रोसेस था. एंड दैट इज आल्सो हैसल प्रोसेस कि अगर कोई नहीं आया है रिफंड, तो वो क्यों नहीं आया है उसके लिए. बिकॉज अगर जो आदमी बैठा है लेट्स सपोज दिल्ली में, उसका नावा शेवा से एक्सपोर्ट कर रहा है, या नावा शेवा वाला आदमी आईजीआई से कर रहा है, बॉम्बे का आदमी, तो देयर वाज अ हैसल अराउंड कि मेरे को रिफंड. तो मैं आज के टाइम पे ये कंसल्टेंट को, लोकल कंसल्टेंट को अपॉइंट करता था, तब समझता था कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, और वो वही कंसल्टेंट उसी आइस गेट पे जाके चेक करके आपको बताता था सर ये प्रॉब्लम एक्स है या वाई है. अब उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा इशू था. यहां पर माई जीएसटी ने एक प्लेटफॉर्म में आविष्कार किया जहां पे उन्होंने आइस गेट प्लस जीएसटी को इंटीग्रेट करके ये पता हो गया कि आपको रिफंड किस वजह से नहीं आया है और कौन कौन से शिपिंग बिल के अगेंस्ट में आ गया है. हम उसके बारे में एक वीडियो देखेंगे एंड देन यू विल गेट टू नो. दूसरा सिचुएशन है विच इज अबाउट एलयूटी, जहां पे आप टैक्स पे नहीं करते हैं और रिफंड आपको आपके एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है वो जीएसटी रिफंड की. ये दोनों के लिए जनरली लागू है, सर्विस एक्सपोर्टर के लिए भी और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी. इन दोनों सिनेरियो में आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, और रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आप जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वो कैलकुलेशन करने के बाद डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करता है, और जो रिफंड आपको मिलता है वो मिलता है ऑन योर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज. कोई आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, मशीनरी खरीदा, उसके ऊपर जीएसटी पे किया तो उसके ऊपर आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा. अब आपको रिफंड, और अगर आप ट्रेडर हैं और आपने सिर्फ मर्चेंट एक्सपोर्ट किया हुआ है, कोई मैन्युफैक्चरिंग की, फिर भी आपको रिफंड मिलेगा क्योंकि आपने इनपुट टैक्स पे किया, और रिफंड अमाउंट इज नेवर एक्सीडिंग द क्रेडिट बैलेंस. आपके क्रेडिट बैलेंस से कभी भी रिफंड अमाउंट ज्यादा नहीं हो सकता. आपकी कैलकुलेशन परस्पेक्टिव में रिफंड अमाउंट ज्यादा हो सकता है, बट इट शुड ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ व्हाट इज योर क्रेडिट बैलेंस. तो विच एवर इज लोअर विल बी ऑलवेज अ सिनेरियो ऑफ रिफंड. चाहे कैलकुलेशन से अमाउंट आया 100 रुपए और क्रेडिट बैलेंस में 80 रुपए है तो 80 रुपए का ही रिफंड मिलेगा, और अगर कैलकुलेशन में 80 आया और क्रेडिट बैलेंस में 100 रुपए है तो भी मुझे 80 रुपए ही मिलेगा. अब यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते हैं, फाइल एप्लीकेशन करते हैं, डिपार्टमेंट आपका रिफंड चेक करता है, और चेक करने के बाद आपके, अब ये सब दिखने में तो ठीक है, बट यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विच इज इन्वॉल्व. आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेंटेन करने पड़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग, एज वेल एज डिपार्टमेंट प्रोसेस करता है, बहुत सारे सवाल पूछता है, एंड देन इसी सिचुएशन में ये सारे कैलकुलेशन को दूर करने के लिए, और कोई भी अमाउंट आपके पास आपको 1 मिनट में पता लग जाए, उसके लिए आपका माई जीएसटी रिफंड का में टूल में जाके आप क्विकली चेक कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अराउंड इज आज ये सेशन में एवरी एक्सेस विच इज बीइंग गिवन विल बी
or free as a token to the members of this community. अब एक्सपोर्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में, विच इज मैं जनरली शिपिंग बिल की आपको डिटेल डालनी पड़ती है, ईजीएम की डिटेल डालनी पड़ती है, बीआरसी, एफआईआरसी। ऑल्दो गुड्स इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का पैसा आना इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड, जबकि सर्विस एक्सपोर्टर में क्योंकि शिपिंग बिल नहीं होता, उसके लिए द ओनली प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट इज कि आपके पास पैसा फॉरेन करेंसी में आया है, जो आपका बीआरसी का सर्टिफिकेट होता है। तो आपको इन द केस ऑफ गुड्स इंडस्ट्री आपके पास सिर्फ रिफंड अमाउंट बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए टू फाइल योर रिफंड एप्लीकेशन। शिपिंग बिल की डिटेल कई बार आदमी गलत डाल देता है, वन में मल्टीपल एरर्स, जो अपलोडिंग करने में कोई गलती हो जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द। अब इस सिचुएशन में माई जीएसटी रिफंड आप में आपको एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करना है। इफ यू सी द स्क्रीन, आपने जीएसटी नंबर डाला, आपने एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स क्लिक किया, टाइम पीरियड क्लिक किया, आपके पास पूरी रिफंड अमाउंट की रिपोर्ट आ जाएगी, सो दैट यू कैन सी कि मेरा रिफंड अमाउंट कितना है। सिमिलरली जो एक्सपोर्ट में विद पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, जहां पे आप अपनी जीएसटी की डिटेल डालते हैं अपने वन में एंड देन यू पुट इट, और वही सारी डिटेल्स आइसगेट पोर्टल पे जाती हैं, और आइसगेट पोर्टल की डिटेल्स जब जीएसटी डिटेल्स आपकी रिटर्न के साथ मैच होती हैं तब आपको रिफंड डिपार्टमेंट कस्टम से आता है। अब यहाँ पे आपकी अगर 1 रुपए की भी कोई गलती होती है जीएसटी रिटर्न भरने में, तो आपका कस्टम्स का रिफंड रुक जाता है और कंपनीज पैनिक कि मेरा तो रिफंड नहीं आ रहा। इन दैट सिनेरियो we always face such challenge. So to recover these challenge and then ये लेट आपको पता लगे ना, आप माई जीएसटी रिफंड प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। दिस इज द रिपोर्ट कार्ड, इफ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दिस इज द काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड जहां पर आपको एक एक शिपिंग बिल, कितना रिफंड आया, कितना रिफंड नहीं आया, और कौन कौन से रीजन से नहीं आया, और उसके एरर्स कौन कौन से हैं, सब एरर्स का आपको डिटेल पता लग जाता है। एंड दिस इज द स्मॉल वीडियो ऑन एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, जहां पे आप अपने जीएसटी नंबर और आइसगेट पोर्टल को लिंक करके इन 1 मिनट यू विल फेच ऑल द डिटेल्स कि कितना रिफंड आया और कितने रिफंड नहीं आया आज तक। हेलो एक्सपोर्ट, आपका जीएसटी रिफंड टाइम पर नहीं आ रहा तो आप क्या करें? पहले के टाइम जीएसटी रिफंड कैलकुलेट करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर जाओ, लॉग इन करो, डिटेल्स फिल करो, फिर हर महीने के शिपिंग बिल की डिटेल चेक करो। अगर कोई इनवॉइस क्लियर नहीं हुआ तो उसका रीजन जानने के लिए आप आइसगेट पोर्टल पर और आइसगेट पोर्टल पर अलग अलग जगह पे चक्कर काटें। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है माई जीएसटी app.mygst रिफंड पर। आप एक क्लिक में आपके महीने के सारे शिपिंग बिल की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वहाँ ये भी देख सकते हैं कि आपका कितना रिफंड पेंडिंग है और कितना रिफंड आपके अकाउंट में आ गया, और अगर वो पेंडिंग है तो उसका रीजन क्या है। अगर आप भी अपना टाइम और पैसा बचाना चाहते हैं तो आज ही जाएं app.mygstrefund.com। हेलो एक्सपोर्ट। So this is about, and similarly on the TCS side, अगर आप किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना सामान बेच रहे हैं, वहां पे आपका TCS का रिफंड आपको मिल सकता है, क्योंकि ये क्रेडिट से कोई लिंक नहीं है, ये आपके सीधा ही कैश लेजर में खड़ा होता है। और उस सिचुएशन में ये नॉर्मली बिजनेसमैन को कभी नहीं पता लगता कि ये मेरा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये क्रेडिट इसको अपने कैश लेजर में लेने के लिए यू नीड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज। तो पहला आपको कैश लेजर में लेने के लिए क्लेम करना पड़ता है, हर महीने में जाके उसको मैन्युअली करना पड़ता था। और माई जीएसटी रिफंड के प्लेटफॉर्म से यू विल बी एबल टू क्विकली आइडेंटिफाई कि कितना मेरा टीसीएस 2017 से लेकर आज तक बना हुआ है जो मैंने क्लेम नहीं किया। एंड वी हैव सीन मेनी केसेस वेयर इन अ बिजनेसमैन, इवन द मेनी बिग कंपनीज एज वेल were not claiming, and they were able to identify this refund opportunity from the platform, and then now they are claiming it with the help of MyGST Refund. I'll not discuss some of the challenge, but you can see from this report card a businessman having a TCS refund, and it's not only a PDF, they are able to see कि मेरा किस किस पूरी Excel report मिलती है
और माई जीएसटी रिफंड नॉट ओनली सिर्फ टीसीएस की अमाउंट आपको बताता है, आपको पूरे प्रोसेसिंग में भी पैन इंडिया में हेल्प करता है. And that is the best part around this. And many of the businessmen are utilizing this money for their own business in their working capital. Just 1 minute of video on the TCS, TDS. Who is selling any goods using an e-commerce or making your supplies to any government organization of more than rupees 2.5, then this video is for you. Getting details of monthly TCS credit can be difficult for you. You do not need to face hassle of checking monthly TCS credit anymore. First, let me tell you what is TCS credit and TDS credit. If you're selling anything on e-commerce portal like Amazon, Flipkart, etc., they deduct 1% of your sales as TCS, tax collected at source, and that TCS get credited in your TCS ledger. And TDS, tax deducted at source, credit arises when you make any supplies to government, which is of more than rupees 2.5 lakh, and government deduct 2% of the amount. With My GST Refund, you can now check these credits with My GST Refund platform. In moment, welcome to My GST Refund platform. Just visit mygstrefund.com. Click on login, enter your login details if you are an existing user, or register if you are a new user. Go to setup option and add business details. Go to GST calculator, choose GSTIN, choose TCS TDS as refund type, select period of which you want to get the report of TCS TDS credit. Download the report and check your eligible refund number. You will get a PDF report with a summary of refund amount and an Excel report for detailed report of TCS TDS credit. So, what are you waiting for? Visit mygstrefund.com and know your eligible GST refund. Do not forget to like our video and subscribe to our YouTube channel for more such videos. Who is selling any? So from the point of view of inverted duty, as just last, अगर आपका कोई सिनेरियो है जहां पे आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं एट अ हायर रेट ऑफ टैक्स, इन दैट सिनेरियो, और आपका आउटपुट रेट लो रेट ऑफ टैक्स में है, विच इज कॉल्ड इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड सिनेरियो. यहाँ पे आप मेरे इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि कोई भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, जो जिसने इनपुट उसके 72 हैं और एम्ब्रॉयडरी प्लस उसका जीएसटी रेट उसकी सेल्स पे 5% का है, इन दैट सिनेरियो दे आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड. And even a trader who is buying certain goods and also using a packing material at a higher rate of tax, they can also look for opportunity. And इसी सिनेरियो में एक एग्जांपल है जहां पे एक बिजनेसमैन हनी ट्रेड कर रहा था, बल्क बाय करता था और छोटी शीशियों में बेचता था. इन दैट सिनेरियो ही गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर अ जीएसटी रिफंड, बिकॉज उसको ये नहीं पता था कि मैं सिर्फ ट्रेडर हूं और डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा हूं, फिर भी मुझे रिफंड मिल सकता है अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी सिनेरियो. एंड आल्सो बिकॉज इन्वर्टेड ड्यूटी सिनेरियो इज आल्सो टिपिकल, जहां पे अगर आपकी एक फॉर्मूला एरर सकता है, तो अगर आप देख सकते हैं कि बिकॉज इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इन दिस सिनेरियो जहां था और रिफंड अमाउंट 0 बना. So it is very important that calculation mechanism should be correct. और बिकॉज हमारी जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो डिपेंड होती हैं किसी एक प्रेफर था, एंड ही इज नॉट फोकस्ड. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग अराउंड इज दैट यू कैन चेक योर एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड, अमाउंट ऑफ रिफंड, and then you can always look around from your consultant and even from My GST Refund whether you want to process or you want to process. But पैसा पता लगना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आप ही का है. And that My GST Refund mission is आपका पैसा आपको मिले, चाहे आपको हमसे My GST Refund से मिले या आपके existing consultant से मिले, so that you can put money into your business and expand it. Hello. I'm happy to answer anyone's question after the session. And if anybody wants to reach out, they can just go to the My GST Refund, GST Refund. उनको login भी नहीं करना, और they need to just go directly to the GST Refund calculator, and they from there they will be able to calculate the refund without even going to a login process. So which we have made it, My GST Refund had made it absolutely free for the users, so that अगर वो एक एक करके GST refund compute करना चाहते हैं अपने GST नंबर का, so they can go and check around.
Thank you, everyone. And I'm done from my session. Okay. Thank you very much, Kapil sir. Thank you for your insights in GST refund. So our next speaker is Mr. Pramod Pawar, Head Business Development of PVG Skill Academy. He will give us the more insights on the NAPS and NAT scheme benefits for MSM. Pramod sir. Radhika ji, you can take the session forward. And Umesh ji. Yes, sir. Yes, sir. We'll continue. Thank you. Welcome. Yeah. Pramod ji, Pramod sir. Is my voice audible? Yes, yes, very much. Radhika madam. Yes, sir. Yeah. Yeah. Over to you, sir. वॉइस पवन जी आपका आवाज आ रहा है यहाँ से बैक, आप जरा म्यूट कीजिए ना। राधिका, जस्ट म्यूट हिम ना। यस, राधिका मैडम कंटिन्यू। Pramod sir, please continue. You are on mute, sir. हाँ, यस, थैंक यू राधिका मैडम, सागर सर थैंक यू, उमेश जी थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द दिस सेशन। फर्स्टली मैं मेरा इंट्रोडक्शन करके देता हूँ, ठीक है। माय नेम इज प्रमोद पवार फ्रॉम बीवीजी इंडिया लिमिटेड। आई एम हेडिंग NAPS NATS schemes for MSMEs। बेसिकली देखा जाए तो मेरा जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले इसमें हमारे साथ जो MSMEs प्राइवेट लिमिटेड या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ने वाली है उसको भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, ठीक है। विन विन सिचुएशन है इसमें। पहले मैं बीवीजी के बारे में बताना चाहता हूँ। बीवीजी इंडिया लिमिटेड ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। ये लगभग देखा जाए तो पूरे इंडिया में 85,000 लोग इसमें काम करते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट में। जो वीआईपी जो क्लाइंट्स है उसमें देखा जाए तो संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम ऑफिस, पीएम जी का जो घर है वो लास्ट 25 ईयर से बीवीजी के एडमिनिस्ट्रेशन में है। अगर आप एयरपोर्ट में भारत के जो 21 एयरपोर्ट है उसमें भी आप अगर देखेंगे तो आप बीवीजी के सर्विसेज वहां पे देखेंगे। जैसे पूना में अगर देखेंगे आप, पूना का जो एयरपोर्ट है वहां पे भी आपको बीवीजी नजर आ जाएगा। मुंबई में जाएंगे तो आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ये दोनों जगह पे बीवीजी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो 2,700 करोड़ की कंपनी है और उसमें से एक जो वर्टिकल है NAPS NATS, ठीक है, ये जो डिवीजन है ये हम लोग रन करते हैं। इसमें देखा जाए तो अभी हमारे पास 5,000 लोग अभी इसमें एनरोल्ड है, ठीक है। और हम लोग इसमें हम लोगों ने 3 साल के लिए 3 साल में 1 लाख लोगों का टारगेट रखा है कि हम लोग NAPS NATS में हम लोग 3 साल में 1 लाख लोगों का हम लोग यहाँ पे एनरोल करेंगे। हम और आप मिलके ये सब ये टारगेट अचीव करने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक बिजनेस एसोसिएट्स बोल के हम लोगों ने एक कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बेसिकली बीवीजी इंडिया लिमिटेड ये इसके जो ओनर है ऑनरेबल हनुमंतराव गायकवाड़ साहब, ये 1997 में इन्होंने 8 लोगों के ऊपर कंपनी स्टार्ट किया था। अभी देखा जाए तो 85,000 लोग पूरे बीवीजी परिवार से जुड़े हैं। और इसमें से मिस्टर रवि घाटे जी जो है ये प्रोजेक्ट पूरा जो है वो रन करते हैं और उनके इसमें, और मैं उनका एक अच्छा कलीग हूँ जो हम लोग
बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट देखते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ ये पीपीटीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको भी समझे कि कंसेप्ट क्या है अपना। ठीक है, अभी आपके सामने एक स्क्रीन है, स्क्रीन दिख रही है सबको आपको? सर दिख रही है सर। हाँ ठीक है, हाँ यस ठीक है। अभी आपके सामने दो दो कंसेप्ट है, एक है नैप्स है, दूसरा है नैट्स। ठीक है, नैप्स जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है और दूसरा है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये जो स्कीम है ये दोनों भी अप्रेंटिस एक्ट 1961 है, जो अपने पुराने जमाने में जो अप्रेंटिस प्रोग्राम है उसको ही गवर्नमेंट ने 2016 को अभी बहुत सारे एमएसएमईज को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट के अधिकार दिए गए हैं। अभी किसको वो अधिकार है, किसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अप्रेंटिस एक्ट जो है इम्प्लीमेंट करे, इसके इसके पूरे जो सवाल जवाब जो है आपको आगे आगे आपको पूरा पता चलेगा कि अप्रेंटिस एक्ट किसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और किसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नैप्स जो है ये नैप्स जो है ये बेसिकली देखा जाए तो स्किलिंग प्रोग्राम है और नेट्स जो है ये अपस्किलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, इसका जो नैप्स का जो काम चलता है ये पूरा ऑनलाइन ही चलता है, बैक एंड पे कोई भी काम नहीं चलता है। ठीक है, नेट्स का भी जो काम चलता है ये टोटली ऑनलाइन पे ही चलता है, बैक एंड पे कोई भी काम इसका चलता नहीं है। ठीक है, अभी सामने आपके यहाँ पे दो लेटर ऑफ इंटेंट जो है, और हम लोग एज अ बिंग थर्ड पार्टी एग्रीगेटर पूरे पैन इंडिया के लिए है, इसका ये अथॉरिटी है हमारे पास कि हम लोग क्लाइंट के बिहाफ ऑफ हम ये पूरा अप्रेंटिस प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का जो भी इसमें जो पैसा आ जाता है उसको हम लोग पूरा प्रोसेस करके उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं, उसका बेनिफिट लेके बेनिफिट हम लोग उसको देते हैं। ठीक है, अभी अभी ये जो अप्रेंटिस प्रोग्राम है किसको एप्लीकेबल है, किसको अभी सामने अगर स्क्रीन देखा जाएगा तो आपको पता चलेगा जिस ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहने दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग रहने दीजिए, ये सर्विस इंडस्ट्रीज रहने दीजिए, हॉस्पिटल रहने दीजिए, जो भी सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स है ये पूरे अप्रेंटिस एक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अभी सामने अगर आप तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स जो है 0 to 3 है उनको ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल है, उनको वो करना नहीं है। ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स जो है 4 to 29 है उनको ऑप्शनल है, वो कर भी सकते हैं, अगर नहीं किया तो भी चलेगा। और जिस ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्कफोर्स है 30 के ऊपर है उनको वो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है, उनको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक अप्रेंटिस एक्ट को सीरियस नहीं लिया, ऐसे 1,80,000 फर्म को गवर्नमेंट ने नोटिस प्रोवाइड किया है और आगे जाके गवर्नमेंट उनको 500 रुपए फाइन एप्लीकेबल करने वाली है। ये जो सब चीजें हैं अप्रेंटिस एक्ट के एक्ट में, ये सब मैंने जो आपको चीजें बताई अभी ये पूरे के पूरे उनके अप्रेंटिस एक्ट के जीआर में मेंशन्ड है। ठीक है, अभी अभी क्या है ये नैप्स नेट्स क्या है और हम लोग क्लाइंट का क्या बेनिफिट है, हमारा क्या बेनिफिट है और किस तरीके से हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली देखा जाए तो ये जो प्रोग्राम है हम लोग क्या करने वाले हैं, उनकी जो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को हम लोग क्या करने वाले हैं, अप्रेंटिस एक्ट में रजिस्टर्ड करने वाले हैं और उसके बदौलत हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आता है वो हम लोग उनको बेनिफिट उनके पास गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है वो हम लोग लेके लेके दे सकते हैं। ठीक है,
अभी नैप्स में देखा जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर नैप्स में देखा जाए तो फिफ्थ पास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के जो बंदे हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, नैप्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या करता है, नैप्स में हम लोगों को पर मंथ, एक मिनट, पर मंथ 1,500 रुपए हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है, सालाना 18,000 रुपए उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। अभी कौन से लोग इसमें हम लोग एनरोल कर सकते हैं, जिनका आप लोगों ने कंप्लायंसेस पे नहीं किया है, वही लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लायंसेस मतलब क्या, पीएफ, ईएसआईसी, लिव इन वेजेस, बोनस, इसको कहते हैं कंप्लायंसेस। ठीक है। ये कंप्लायंसेस जिस एम्प्लॉय का आप लोगों ने पे नहीं किया है वो लोग हम लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एज लिमिट क्या रखा है उस एम्प्लॉय का, उन्होंने एज लिमिट रखा है 18 से लेके 35 ईयर तक उन्होंने एज लिमिट रखा है। उसके ऊपर के जो बंदे हैं वो इसमें नहीं आएंगे। 18 से लेके 35 ईयर जिनका है वही बंदे हम लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं नैप्स में। ठीक है। दूसरा जो प्रोग्राम है नेट्स, नेट्स में दो ही कैटेगरी के लोग हम लोग ले सकते हैं, एनी डिप्लोमा, एनी ग्रेजुएट। ठीक है। डिप्लोमा के केस में गवर्नमेंट हम लोगों को 4,000 रुपए प्रोवाइड कर देता है, सालाना 48,000 हम लोगों को ईयरली वो गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है। एनी ग्रेजुएट में 4,500 पर मंथ हम लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता है, सालाना 54,000 गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है। अभी इसमें जो कैंडिडेट है कौन से हम लोग एनरोल कर सकते हैं, तो पहले जिनका आपने कंप्लायंसेस पे किया है वो भी कैंडिडेट हम लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, और जिनका आपने कंप्लायंसेस नहीं किया वो भी लोग हम लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ उन्होंने क्या किया है, डिप्लोमा और ग्रेजुएट में ये जो बंदे हैं ये लास्ट 5 ईयर पास आउट होने चाहिए। ये उन्होंने सिर्फ एजुकेशन जो लिमिट है वो उन्होंने इसमें रखा है। ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो नेट्स वाला जो प्रोग्राम है वो तो मतलब बोथ साइड विन विन है। आपने कंप्लायंसेस नहीं किया, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लायंसेस पे नहीं किया वो कैंडिडेट भी हम लोग एनरोल कर सकते हैं, या अभी अगर उस वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंसेस पे भी कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसमें अगर देखा जाए तो कैंडिडेट का बेनिफिट क्या है, क्लाइंट का बेनिफिट क्या है। ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे क्लाइंट बेनिफिट के ऊपर। नैप्स में क्या है, नैप्स में गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को 1,500 पर मंथ प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप लोगों ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कंप्लायंसेस पे नहीं किया तो उसके 4,500 रुपए बच जाते हैं, 4,500 उसके पैसे बच जाते हैं। अगर ये दोनों का अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 4,500 प्लस 1,500, तो दोनों का लगभग कैलकुलेशन करने के बाद उस कंपनी का जो फायदा जो हो जाता है लगभग देखा जाए तो 6,000 जो पर मंथ फायदा उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और सालाना देखा जाए तो 72,000 उस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है एक कैंडिडेट के ऊपर। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंसेस पार्ट और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला जो पैसा है, ये दोनों का कैलकुलेशन जो 6,000 होता है, उसके बदौलत हम लोग क्या करते हैं, पोर्टल हैंडलिंग चार्जेस या सर्विस चार्जेस जो है वो हम लोग 1,000 पर मंथ हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के पास से हम लोग सर्विस चार्जेस हम लोग लेते हैं। ठीक है। नेट्स में देखा जाए तो एनी ग्रेजुएट में गवर्नमेंट हमको 4,500 प्रोवाइड कर देती है पर मंथ। 4,500 का कंप्लायंसेस उस ऑर्गेनाइजेशन का बच गया, 9,000 पूरा उस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो गया, तो सालाना 1,08,000 रुपए उस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हुआ।
तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से आने वाला जो 4,500 रुपए है और कंप्लायंसेस जो बचे हैं जो 4,500 रुपए है, उनका दोनों का जो 9,000 उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फायदा हो रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं कि सर्विस चार्जेस जो है 1,500 रुपए पर मंथ उस ऑर्गेनाइजेशन के पास से हम लोग लेते हैं। ठीक है। एनी डिप्लोमा के केस में गवर्नमेंट क्या करता है, 4,000 रुपए जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। 4,500 रुपए जो है वो कंप्लायंसेस का से हो गया। दोनों का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 8,500 रुपए जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हुआ। सालाना देखा जाए तो 1,02,000 रुपए उस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है। ठीक है। उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के तरफ से आने वाले 4,000 रुपए और कंप्लायंस से जो है बच गए उनके, उसके 4,500 रुपए, ऐसे 8,500 में से सर्विस चार्जेस जो है वो 1,500 रुपए हम लोग लेते हैं। ठीक है। अभी उसमें सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं है, लगभग देखा जाए तो इसमें कैंडिडेट का भी फायदा है। जो लोग हम लोग इसमें एनरोल करने वाले हैं, अगर नया ये सामने आप देखेंगे तो 2 सर्टिफिकेट है, एक नैप्स का सर्टिफिकेट है, एक नैट्स का सर्टिफिकेट है। ठीक है। ये नैट्स का जो सर्टिफिकेट है ये इतना पावरफुल है कि ये सर्टिफिकेट के बदौलत वो बंदा अगर चाहता है कि मुझे इंडिया में काम नहीं करना है, मुझे अदर कंट्री में काम करना है, तो इसके बदौलत उसका L1 वीजा क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है। दूसरा बात है कि एचआर के जो वेरिफिकेशंस होते हैं उसके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री जो सेंट्रल की जो मिनिस्ट्री है वो इसको इशू करती है। ठीक है। तीसरी बात है कि इसके बदौलत उसको परमानेंट एम्प्लॉयबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। और चौथी बात है कि एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ये दोनों सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। 5 बजे जाना नहीं है ने पार्क से ढोल बाजे पे पैस है। लॉक करो अधिका थोड़ा म्यूट कीजिए सर। अभी अभी इसमें ये तो हो गया उस क्लाइंट का फायदा, इसमें हो गया वो कैंडिडेट का फायदा। तो मेरा क्या फायदा है? ठीक है। तो मेरा क्या फायदा है एज अ बिंग बिजनेस एसोसिएट, आपका क्या फायदा है? नैप्स में हम लोगों ने सर्विस चार्जेस जो है वो कितने ले लिए? 1,000 रुपीज। उसमें से 500 रुपए किसको जाएगा? बीवीजी को जाएगा। ठीक है। और 500 किसको जाएगा? आपको जाएगा। ठीक है। ये दोनों का मिला के हो गया आपका 1,000 रुपीज। ठीक है। नेट्स में हम लोगों ने सर्विस चार्जेस कितने लिए? 1,500। इसमें क्या है, 750 रुपए जो है वो बीवीजी को चला जाएगा, 750 रुपए किसको चला जाएगा? आपको चला जाएगा। तो ये हो गए 1,500 रुपीज। ठीक है। अगर क्लाइंट आपके फेवर में है, तो अगर आपने एक डील अगर 1,200 रुपए में आपको सर्विस चार्जेस उस क्लाइंट ने एक कैंडिडेट पे दिया, तो बीवीजी को कितना जाएगा? तो सिर्फ 500 रुपए ही जाएगा, 700 रुपए जाएगा आपको जाएगा। तो ये दोनों को मिला के हो गया 1,200 रुपए। ठीक है। अगर नैट्स में वो जो क्लाइंट है आपके फेवर में है, ठीक है, अगर वो फेवर में है तो आपने वो जो डील है 1,800 रुपीज में आपने अगर वो कन्वर्ट कर दी, तो 750 रुपए जो है वो बीवीजी को चला जाएगा, 1,050 रुपीज किसको चला जाएगा? वो आपको चला जाएगा। ये हो गया 1,800। ठीक है। अभी देखा जाए तो ये जो सब चीजें है, जैसे कंप्लायंसेस पे नहीं करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन डरेगी ना कि कंप्लायंसेस नहीं पे किया, कल जाके मैं इसमें अटक जाऊंगा या कुछ ऑडिट में मेरे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो सामने 2 जीआर है, एक पीएफ अथॉरिटी का है, एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है। ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें क्लियर मेंशन किया है कि इसमें जो कैंडिडेट है उनको पीएफ अगर नहीं दिया या कंप्लायंसेस पे नहीं किए तो भी दिक्कत नहीं है। ये एज ए अप्रेंटिस, एज ए ट्रेनी को इसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है, उनको पीएफ मतलब पीएफ नहीं दिया तो भी चलेगा और कंप्लायंसेस पे नहीं किए तो भी चलेगा। सामने वो 2 जीआर मैंने आपको दिखाए है। ठीक है।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कुछ लॉ ब्रेक कर रहे हैं, हम लोग अप्रेंटिस एक्ट ही फॉलो कर रहे हैं और लेबर मिनिस्ट्री को जो गाइडलाइंस है वो भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो नैफ में अगर आप लोगों ने 100 लोगों का अगर इसमें आपने बिजनेस लेके आए, ठीक है, तो सालाना महीने में आपको 50,000 रुपए मिलेगा और सालाना आपको 6 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप पकड़िए, इसमें अगर आप लोगों ने 1,000 लोगों का अगर बिजनेस लेके आए तो ये फिगर्स क्या होने वाली है आप देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है, ठीक है। नेट्स में आप लोगों ने 100 लोगों का अगर बिजनेस आप लेके आए तो आपको सालाना जो है 75,000 रुपीज आपको सालाना नहीं, मंथली जो है 75,000 रुपीज आपको मंथली मिलने वाले हैं और सालाना देखा जाए तो 9 लाख रुपीज जो है आपको फायदा हो जाता है। अभी इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग अभी बहुत सारे जगह पे आप जाओगे लीड के लिए, आप घूमोगे फिरोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, पर लीड 500 रुपए का हम लोगों ने रेशो रखा है, ठीक है। अभी ये जो पैसा जो है आपको कब मिलेगा, अगर आप लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्री को विजिट किया, आप वहां वहां से तो कन्वर्सेशन नहीं आ पाया, लेकिन आपको 9 विजिट कर दिए और 10 में आपको सक्सेस आ गया, तो ठीक है, ये 500 500 500 मिला के 10 आपका सक्सेस हो गया। तो इसका पूरा कैलकुलेशन करके हम लोग क्या करेंगे, 5,000 जो है 5,000 जो है वो हम लोग आपको पे करने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे ही जो साइकिल है ये ऐसे ही चलती रहेगी, आपको लीड के भी पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कन्वर्सेशन जो रेशो जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि हम लोग एमएससी में रिक्रूटमेंट जो है, ठीक है, अभी बहुत बार क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बंदे भी लग जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर वो बंदे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर दिया तो उसके लिए जो वन टाइम जो कॉस्ट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लेते हैं, 8.33% लेते हैं या वन पेमेंट लेते हैं जो है, और या हाफ पेमेंट जो लेते हैं, इसमें पीजी का कहाँ पे भी पार्ट नहीं है, ठीक है। ये ये चूक या आप अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को, एक मिनट सर, एक मिनट सर। थोड़ा कॉल आ गया था इसके लिए थोड़ा आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes, we are able to hear you. We are short on time, so kindly quickly just to wrap it up and then we can connect directly with each other. ठीक है, यस, ओके। Thank you. अगर अभी इसमें देखा जाए तो आपको अगर हमारा जो रिक्रूटमेंट का जो चल रहा था कि रिक्रूटमेंट कैसा है, रिक्रूटमेंट में अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर बंदे भी देते हैं तो उसका जो वन टाइम कॉस्ट है, सैलरी है, या 8.33% जो आप रिक्रूटमेंट चार्जेस लेते हैं, वहां पे बीवीजी कहाँ पे भी आपका शेयरिंग जो है वो आपको ही मिलेगा, वहां पे बीवीजी कहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि सामने स्क्रीन दिख रही है सर आपको सबको?
यस यस दिख हेलो रही है सर, यस यस दिख ठीक रही है है सर। थोड़ा हाँ ठीक है ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे ऐसे कर सर आई थिंक आप हमको ब्रीफ मिल गया है. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज वी विल कंटिन्यू दिस सेपरेटली बिकॉज वी आर ऑलरेडी एक्सीडेड आवर टाइम बाय मोर देन हम्म हाफ एन आवर. हम्म Prashant sir, I request you to just quickly summarize it, and then what we will do is with individual participants we'll connect directly and take this forward. Prashant sir, you there? Hello. Yes, yes, sir. Yes, please. Thank you all for joining us today. This webinar on financial literacy. We hope you found the presentation informative and engaging. I would like to extend my gratitude to our speaker, Mr. Kapil and Pramod sir, for sharing their expertise and insight with us. Your valuable contributions have made this webinar successful. We also appreciate the participation and engagement of our attendees. Your questions and comments have added depth and value to discussion. If you have any further questions or would like to access the presentation material, please visit website My GST Return or VVG Skills. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. For the next steps, especially with the associations, we'll directly get in touch with you for taking these programs to larger member base. And from all our team members, unfortunately, due to some delays or technical issues, we had faced some challenges. But I hope this has helped to some level, and we would like to connect with you individually post this event. Thank you, everybody. Thank you everyone. Recording stopped.